So guys, so question is all x satisfying the inequality cot inverse x whole square minus 7 into cot inverse of x plus 10 is strictly positive. So we have to find the solution for this given inequality. So inequality is given as cot inverse of x whole square minus 7 times of cot inverse of x plus 10 is strictly positive. So we will factorize this inequality. So we can write it as cot inverse of x whole square minus 5 cot inverse of x minus 2 cot inverse of x plus 10 is strictly positive. So from the first two terms we can take common cot inverse of x. So the remaining is cot inverse of x minus 5. So from the last two terms we can take common minus 2. So the remaining is cot inverse of x minus 5 is strictly positive. So this gives cot inverse of x minus 5 into cot inverse of x minus 2 is strictly positive. Okay, so now the product of these two terms is positive, so that means either both the term are positive and both the term are negative. So since we know that cot inverse of x lies between 0 to pi, so from here we can say that cot inverse of x minus 5 is strictly less than 0. So if the first term is strictly negative, so second term is also negative, because then only the product is positive. So from here we can say that cot inverse of x minus 2 is also strictly less than 0. So this gives cot inverse of x is strictly less than 2. And we know that the cot inverse x is a decreasing function. So this gives x is strictly greater than cot of 2. So which implies x belongs to the interval cot 2 to infinity. So therefore, this is the required interval for the x, that is x belongs to the open interval cot 2 to infinity. So the correct answer is option 1. In this question, the set of values of theta satisfying this inequations 2 sin square theta minus 5 sin theta plus 2 is greater than 0 from theta equals to 0 to 2 pi. So equation is 2 sin square theta minus 5 sin theta plus 2 is greater than equals to 0. So यहाँ से हम इक्वेशन लेंगे 2 sin square थीटा, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे माइनस 4 sin थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0. यहाँ से 2 sin थीटा कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी sin थीटा माइनस 2, और इसमें से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगी sin थीटा माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0. तो इसके फैक्टर्स आ गया हमारे पास टू साइन थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा माइनस 2. दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. सो रीजन कौन सा आ गया हमारे पास इज 1/2 एंड 2. सो प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव रीजन आएगा मीन्स दिस वन रीजन, मीन्स साइन थीटा की वैल्यू कहाँ होगी साइन थीटा इज लेस देन 1/2 एंड साइन थीटा इज ग्रेटर देन 2. So sin theta is less than 1/2 and sin theta is greater than 2. तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं होती क्योंकि sin theta is from -1 to values gives sin theta will gives values -1 to 1. तो sin theta is never be greater than 2. So only possible value of sin theta is less than 1/2. तो सबसे पहले हम अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे sin थीटा का. सो दिस इक्वल्स टू 0 to थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई. सो 0 to 2 पाई के अंदर साइन थीटा इज, सो दिस इज साइन थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई. दिस इज 2 पाई. सो साइन थीटा इज लेस देन 1/2. सो सपोज दिस वन इज 1/2, साइन थीटा इज 1/2 वैल्यू. सो इससे लेस वैल्यू मीन्स दिस इज द y इक्वल्स टू 1/2 लाइन. This one is y equals to 1/2 line. So this point is pi. So 1/2 कहाँ पर होगा? This is at pi by 6 and this point is 5 pi by 6. So sin theta is less than 1/2. So कहाँ से कहाँ होगा? रीजन होगा theta equals to 0 to pi by 6 and again union 5 pi by 6 to up to 2 pi. थीटा वैल्यू इज 0 to 2 पाई के अंदर हमें फाइंड आउट करना है इंटरवल ऑफ थीटा. सो दिस इज इक्वल टू 0 to pi by 6 यूनियन 5 pi by 6 to 2 पाई. सो वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 to pi by 6 यूनियन 5 pi by 6 to 2 pi. Okay, where theta is 0 to 2 pi. So set of values of theta satisfying this equation is greater than 0. Means this value is positive when theta is from 0 to pi by 6 union 5 pi by 6 to 2 pi. अप टू 2 पाई एंड 0 to pi by 6. इस रीजन में रहेगा थीटा, तो ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी. ओके,
So this is the answer for this question. क्वेश्चन है हमारे पास द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन है आपके पास साइन ई पावर एक्स इक्वल टू 5 पावर एक्स प्लस 5 पावर माइनस एक्स, है ना। इक्वेशन कैसी चल रही है, साइन ई पावर एक्स इक्वल टू 5 पावर एक्स प्लस 5 पावर माइनस एक्स। सॉल्यूशन की बात चल रही है। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है जिसमें x की वैल्यूज पे वो सेटिस्फाई हो जाए ना, x की ऐसी वैल्यूज आपके पास जिसपे ये दोनों इक्वल हो जाए, है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर रियल नंबर्स के लिए। रियल नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, तो हमको ऐसे यहाँ पर x देखने हैं, ऐसे कितने x होंगे जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर रियल नंबर के केस में आपके पास एक रिजल्ट होता है एम अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। कोई भी दो नंबर है, मान लो आपके पास a और b है, तो a और b का अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई 2 और gm जो होता है वो होता है रूट ab। क्लियर, तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करता हूँ किसके लिए, 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस एक्स। मतलब a तो है 5 पावर x और b लिया मैंने 5 पावर माइनस एक्स, तो आपके पास 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के। तो आपके पास RHS देखो बेस से में पावर सम हो जाएगी तो 5 पावर 0 बनाएगा, है ना, और ये 2 RHS में जाएगा तो 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, RHS की। RHS आपके पास कैसा है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है उसका RHS ही तो ये, तो RHS ऑलवेज कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखो LHS, देखो LHS चल रहा है साइन ई पावर x। तो हम बात करें यहाँ पर अगर साइन की, तो आप जानते होंगे साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ऑलवेज -1 से +1, यही रेंज होती है साइन थीटा की। तो यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा है, साइन ई पावर x चल रहा है, तो साइन ई पावर x जो है वो तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब हम बात करें यहाँ पर तो LHS हमारे पास कैसा हो गया, LHS जो इक्वेशन गिवन है उसका LHS यही तो है, तो LHS लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों रिजल्ट्स को आप देख लें, फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को। RHS ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, LHS ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 है। इसका मतलब LHS और RHS कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, और LHS और RHS अगर आपके पास इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब आपके पास रूट आएंगे ही नहीं, है ना। गिवन इक्वेशन जो है उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 0 होंगे। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला, स्मॉल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन 10x माइनस एक्स इक्वल टू 0 लाइज इन पूछा गया। ठीक है, तो हमसे क्या दिया हुआ है 10x इज इक्वल टू x, इसका सॉल्यूशन पूछा गया है। तो मैं दोनों का ग्राफ बनाता हूँ अलग अलग। ठीक है, तो ये मेरी आ गई y एक्सिस, ठीक है, ये मेरी आ गई x एक्सिस। ठीक है, अब मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ठीक है, ये 2π आ गया। अब थोड़ा वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व होना इजी हो जाए। ये π/2 की लाइन आ गई, ये पाई की लाइन आ गई। ठीक है, ये 3π/2 लाइन आ गई। ठीक है, अब देखो 10 का ग्राफ कैसा होता है, 10 0 पे 0, π/2 पे इनफाइनाइट। ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है 10x का। ठीक है, ये 0 से एक्चुअली 0 से ही होगा। ठीक है, फिर ऐसा है π/2 पे, फिर यहाँ से ऐसे आता है और फिर ऐसे जाके, तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इक्वल टू 10x का ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये यहाँ भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, और y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, ये कुछ ऐसे होता है, y इक्वल टू x का ग्राफ, ये ग्राफ आया y इक्वल टू x का ग्राफ। तो हमारा एक पॉजिटिव रूट कौन सा है, ये आया। पहला रूट तो हमारा कौन सा होगा, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 एक रूट है, बट पॉजिटिव रूट पूछा गया हमसे, तो पॉजिटिव रूट का यहाँ पे आएगा, जो कि बीच में आएगा पाई और 3π/2 के बीच में आएगा। तो हमारा आंसर कितना जाएगा, पाई टू 3π/2, इसके बीच में हमारा पॉजिटिव रूट आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको पूछा था द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स a1 a2 a3, मतलब कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है a1 a2 a3 की, सच दैट दिस इक्वेशन देखिए a1 प्लस a2 cos 2x प्लस a3 होगा, यहाँ पे ये a3 है, इसको a3 साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर ऑल x। देखिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि x कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे अंदर। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करना ही करना है, मतलब x कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं, a1 प्लस a2 cos 2x प्लस a3 साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या करूँगा अब मैं इसके अंदर,
देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ a1 प्लस a2 का cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस a3 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो a1 प्लस a2 ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ माइनस 2a2 साइन स्क्वायर x प्लस a3 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा a1 प्लस a2, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर x ब्रैकेट में लगा देता हूँ, इसमें आएगा a3 माइनस 2a2 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे, देखिए ये कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पे टर्म बोलता हूँ कि फॉर ऑल एक्स, देखिए यहाँ था ना फॉर ऑल एक्स, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, मतलब साइन x की वैल्यू कुछ भी हो जाए कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरे को, ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। तो मैंने बोला कि x की वैल्यू हमेशा तो 0 नहीं हो पाएगी कि इसको 0 कर पाऊँ और फिर हमेशा ये 0 हो जाए, बट ये जो कॉन्स्टेंट्स है वो 0 हो सकते हैं ना, मतलब a1 प्लस a2 शुड बी इक्वल टू 0 एंड a3 माइनस 2a2 शुड बी इक्वल टू 0, ऐसा तो बोल सकता हूँ ना मैं क्या बोला कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये तो 0 हो सकते हैं आराम से, इसमें तो कोई मना ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए a1 प्लस a2 इक्वल टू 0 या फिर a3 माइनस 2a2 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a2 इज इक्वल टू माइनस a1, राइट, a2 इक्वल टू माइनस a1, और यहाँ से आएगा a3 इज इक्वल टू 2a2, मतलब a3 इज इक्वल टू माइनस 2a1, ठीक है। तो मतलब मेरे ट्रिपलेट्स क्या होंगे, a1 a2 a3 थे, तो अब मैं अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ a1 a2 क्या है माइनस a1 और माइनस 2a1, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ जैसे जैसे मैं a1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, a1 की वैल्यू कुछ भी रख दूंगा, तो a2 और a3 इस हिसाब से मैनिपुलेट होंगे, इस हिसाब से चेंज होंगे कि ये जो इक्वेशन है वो हमेशा ही सेटिस्फाई होने वाली है। तो अब मैं a1 को तो इनफाइनाइट रख सकता हूँ, बिकॉज a1 बिलोंग्स टू r, तो a1 की वैल्यू तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि देखिए मैंने यहाँ पे तो पहले कंपेयर किया, दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मुझे इससे ये चीज़ मिली पक्की वाली, ठीक है, कि जो a2 और a3 है वो डिपेंड कर रहे हैं a1 के ऊपर, ठीक है। अब मैंने बोला कि a1 को तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, a1 में तो मेरे को कोई गुनाही थोड़ी ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना कहीं पर भी कुछ डालने में, तो मैं a1 की वैल्यू जैसे जैसे मैं डालूंगा तो a2 और a3 इस हिसाब से मैनिपुलेट होंगे इन इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है, कि ये जो इक्वेशन है हमेशा ही 0 आने वाली है फॉर ऑल x। तो हम लोग बोलेंगे इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। a1 ये माइनस a1 और ये माइनस 2a1 के हिसाब से, ठीक है। Hello students, in this question it is given as sec square theta is equals to 4xy upon x plus y whole square is true if and only if 4 different conditions are given. So first let us solve this expression. It is given as sec square theta is equals to, okay, we know that sec square theta is always greater than equal to 1, right? So what we get is 4xy upon x plus y whole square is greater than equal to 1. So I can write 4xy is greater than equal to x plus y whole square, or I can say x plus y whole square minus 4xy is less than equal to 0, right? And if I write this further, I know that x minus y whole square is less than 0. So I can say x is less than y, right? We know this. Now we have to also think about another inequalities. We know that denominator can't be 0. So x plus y is not equal to 0. Now if I add x both sides, so what I get is 2x plus y is not equal to x. And now if I put y is equals to 0, okay, then what I get is 2x minus x is not equal to 0 or x is not equal to 0. So this condition is also there and y is equals to 0 and x is not equal to 0. Okay, and from here what we get is x is equals to y. So we got 3 different conditions. One is x is equals to y, another is x plus y is not equal to 0, then y is equals to 0 and x not equal to 0. So now let us see the options and check which of the options are right. First option is x plus y is not equal to 0. Yes, this option should be there. Then B option is x is equals to y and x is not equal to 0. Yes, true. C option is x is equals to y but another condition is not there. And D option is x is not equal to 0 and y should also not be equal to 0. But this is possible that x is not equal to 0 and y is equals to 0. Okay.
So we have solved this question. Thank you. हेलो गाइस, तो हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है। द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 3 सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। जो इक्वेशन है वो हमें ये गिवन है। तो देखिए सबसे पहले तो हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। 1 अपॉन साइन पाई बाय n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2 पाई बाय n प्लस 1 अपॉन साइन 3 पाई बाय n है। अब हम इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो देखिए क्या बनता है। 1 अपॉन साइन पाई बाय n माइनस 1 अपॉन साइन 3 पाई बाय n आ जाएगा। ये किसके इक्वल है? जो हमारी राइट हैंड साइड है 1 अपॉन साइन 2 पाई बाय n। अब देखिए यहाँ से मैं अगर एलसीएम ले लूँ इसका, तो मुझे एलसीएम के बाद क्या मिलता है? साइन पाई बाय n इंटू साइन 3 पाई बाय n। अब साइन 3 पाई बाय n यहाँ पे आ जाएगा, साइन 3 पाई बाय n माइनस साइन पाई बाय n आ जाएगा। ये किसके इक्वल है? हमारा राइट हैंड साइड साइन 2 पाई बाय n के इक्वल है। अब देखिए ये हमें आ गया। तो अब यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी किसके इक्वल होता है? तो ये इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ साइन सी माइनस डी बाय 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन सी माइनस डी यानी 3 माइनस पाई कितना होगा? 2 पाई आ गया। 2 पाई बाई 2 कितना हो गया? पाई बाई हो गया, यानी पाई बाई एन आ गया इंटू कॉस में हमारा कितना आएगा? प्लस है, यानी 3 + 1 4 यानी 2 पाई बाई एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ गया अपॉन जो हमारा नीचे है वो सेम साइन पाई बाय एन इंटू साइन 3 पाई बाय एन। अब देखिए अगर मैं इस वाली साइड को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ ये वाली टर्म को, तो मुझे क्या मिलेगा? साइन 2 पाई बाय एन आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से मेरा कैंसिल क्या हो रहा है? ये वाली टर्म मेरी कैंसिल होगी। और ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? ट्वाइस ऑफ कोस ए साइन ए का, यानी 2 साइन ए कोस ए का। तो ये क्या हो जाता है? साइन 2a यानी 2 × 2 4 हो गया, यानी 4 पाई बाय एन इज इक्वल टू ये वाली टर्म हमारी उधर चली गई तो क्या आ जाएगा? साइन 3 पाई बाय एन। अब देखिए ये हमारा इक्वल है। देखिए अब हम साइन की एक और प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, क्या होती है? साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। तो इन दोनों में से किसी एक को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस 4 पाई बाय एन इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाय एन के बराबर लिख सकता हूँ। और यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँ इसको साइन को, देखते हैं मुझे क्या मिलेगा? पाई माइनस 4 पाई बाय एन इज इक्वल टू 3 पाई बाय एन। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? पाई इज इक्वल टू 7 पाई बाय एन। पाई से पाई कट गया तो यहाँ से मुझे क्या मिला? एन इज इक्वल टू 7। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? हमें एन की वैल्यू बतानी थी। तो एन की वैल्यू क्या आ गई? एन इज इक्वल टू 7 और ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द नंबर ऑफ वैल्यूज अपने को थीटा की बतानी इन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2 के बीच में, जिसके लिए ये बोला गया है कि n π/5 नहीं बिलोंग करता है और n का मान जहाँ पर +-1 0 एंड +-2 है। ठीक अपने को क्या दिया गया है? इक्वेशन दिया गया है कि tan थीटा इक्वल टू है अपना क्या? cot 5 थीटा के बराबर और sin 2 थीटा बराबर है cos 4 थीटा के बराबर है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहला हम लोग उठाते हैं tan थीटा इक्वल टू अपना दिया गया है cot 5 थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना tan थीटा माइनस ऑफ cot 5 थीटा। हम लोग अब sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ठीक, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो वैल्यू हो जाएगी अपनी क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस 5 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? ये एलसीएम लेंगे तो हम लोग को मिलेगा साइन थीटा। ठीक, क्या मिलेगा? साइन थीटा ये आ जाएगा इधर
और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा साइन 5 थीटा आएगा, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस 5 थीटा एंड कॉस थीटा, और अपॉन में क्या रहेगा अपना, ये आ जाएगा साइन 5 थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो नीचे वाली वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे 0। और देखो फॉर्मूला होता है अपना क्या, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है अपने पास कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। ठीक, तो यही फॉर्मूला हम लोग ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये मिल जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस 5 थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा साइन 5 थीटा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा कॉस 5 थीटा प्लस थीटा बराबर 6 थीटा, यानी कॉस 6 थीटा बराबर 0, कॉस 6 थीटा बराबर 0 मिल गया। ठीक, 0 मिल गया तो अपने को माइनस π/2 से π/2 तक ही थीटा जा रहा, तो 6 थीटा का मान देखो क्या आएगा अपना, प्लस माइनस π/2 पे रहेगा। ठीक, प्लस माइनस 3 π/2 पे रहेगा और प्लस माइनस 5 π/2 पे आने वाला है। ये सभी मान पे अपना क्या ऐसे 0 आएंगे वैल्यू, तो थीटा का मान देखो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, प्लस माइनस π/12। ठीक, मैं 5 π/2 तक ही लिया, क्योंकि ये बोला गया है कि थीटा का इंटरवल है अपना माइनस π/2 से π/2 के बीच में। तो देखो यहाँ से थीटा जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ दिस एंड π/, आएगा अपना 4 और प्लस माइनस 5 π/12 आएगा। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू अपनी क्या एक्सीड कर जाएगी इसको, तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे बाकी की, सिर्फ ये यहाँ पे 6 वैल्यू आएंगी। डन। अब दूसरा इक्वेशन दिया गया था अपना क्या, साइन 2 थीटा बराबर है कॉस 4 थीटा। ठीक, तो ये देखो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। ठीक, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देता हूँ, माइनस ऑफ 1 है, तो ये हो जाएगा देखो कॉस 2 थीटा बराबर आ जाएगा अपना क्या, कॉस 2 थीटा बराबर आ जाएगा अपना माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे अपना, क्योंकि ये क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस, देखो साइन 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग कॉस 2 ऑफ 2 थीटा। ठीक, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो वैल्यू जो है अपनी अपनी आ जाएगी, साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस ऑफ 1। ठीक, तो ये देखो बन जाएगा अपना 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा है, 2 थीटा प्लस ऑफ साइन 2 थीटा माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग इसका फैक्टर क्या आएगा, 2, इसका फैक्टर आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस ऑफ 1 एक, और दूसरा आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा प्लस ऑफ 1, 2 नहीं आएगा इस बार, क्या आएगा अपना सिर्फ साइन 2 थीटा आएगा इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि अपने को क्या लाना था, अपने को यहाँ पे -2 लाना है, तो मैं इसको देखो कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2 थीटा अपने को क्या लाना था माइनस ऑफ 2, तो ये प्लस ऑफ 2 साइन 2 थीटा लिख सकते हैं एंड माइनस ऑफ साइन 2 थीटा -1 लिख के 0, और फिर हमने यहाँ पे फैक्टर लिया है कॉमन लेके। ठीक, तो यहाँ से देखो वैल्यू आ जाएगी अपनी कि साइन 2 थीटा का मान क्या होना चाहिए, यह आएगा देखो 2 वैल्यू आएगी अपनी, पहली वैल्यू आ जाएगी देखो साइन 2 थीटा बराबर आएगा अपना क्या 1/2। ठीक, दूसरा यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना क्या साइन 2 थीटा इक्वल टू -1, साइन 2 थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ओके, यहाँ से आ गया। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू देखें तो क्या आएंगी अपनी, साइन 2 थीटा बराबर क्या है 1/2, तो 1/2 मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा π/3, क्या होता है 1/2 होता है π/3, तो अपना आएगा वैल्यू π/6 होता है, क्या होता है 1/2 मान कब देता है, साइन क्या साइन π/6 का मान होता है 1/2, तो ये π/6 है। और यहाँ पे हम लोग और भी वैल्यू लिखेंगे क्योंकि अपने को -π/2 से क्या चाहिए π/2 तक, तो ये हो जाएगा देखो अपना 2 थीटा बराबर हो जाएगा क्या
2 थीटा बराबर हो जाएगा अपना, एक तो आएगा पाई बाई 6, दूसरा क्या आएगा 5 पाई बाई 6। अब उसके बाद ये एक्सीड कर जाएगा, ठीक, तो नहीं लिखेंगे। यहाँ से देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा अपना पाई बाई 2, ठीक, क्योंकि पाई बाई 2 पे ही क्या देता है अपना मान, ये 1 देता है, माइनस का पाई बाई 2 पे क्या देता है, -1 देता है, ठीक, माइनस का पाई बाई 2 पे -1 देता है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई 4, और यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएंगे, पाई बाई 12 एंड 5 पाई बाई 12, ठीक। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेटिस्फाई करता है, एज वेल एज लिखा था, तो हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अपना इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 पाई बाई 12, हाँ दोनों में आया 5 पाई बाई 12, ठीक, 5 पाई बाई 12 ये यहाँ पे भी आया प्लस वाला, और यहाँ पे पाई बाई 12 भी आया, और पाई बाई 4, लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आई हैं, और यहाँ पे सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज आई हैं, क्या, और यहाँ पे एक माइनस वाली। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो मैं लिख देता हूँ क्लियरली, द कॉमन वैल्यूज ऑफ थीटा आर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो कॉमन वैल्यूज आएंगी थीटा की, वो होगी पाई बाई 12, पाई बाई 4 माइनस का 1, ठीक, पाई बाई 12 आएगा एंड 5 पाई बाई 12 आएगा, मतलब अपनी 3 वैल्यू होंगी। तो आंसर क्या आएगा अपना 3, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।